pandemic शुरू हो गया, then I spoke to him. I said, चलो हम लोग एक बार और मिलते हैं. He said, यार जल्दी मिलना है यार, ये जल्दी खत्म हो जाए pandemic. मुझे मिलना है और जल्दी काम शुरू करते हैं. बस फिर नहीं हो पाया, मिलना ही नहीं हो पाया. उनका जब वो जो बोलते हैं वैन जब स्मशान के अंदर गया तो देख ही नहीं पा रहा था. मुझे लग रहा था क्या हो रहा है, मतलब इट वाज लाइक कि हमारे अंदर से कुछ जा रहा है. बहुत अलग फीलिंग थी, अभी भी वो नहीं समझ में आ रहा. सो ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड he was really managing entire like 150 junior artists, and with his performance he was handling all this. So I mean I still can't believe that he's no more. I mean he's still with me. मेरे जिंदगी का एक ही मकसद रहा है कि मैं जो काम करूं मैं अपने बेस्ट एबिलिटी से करूं. जो कहूं जो करूं लोग उसे चाहें, यही उम्मीद लगा के बैठता हूं. और ईश्वर की कृपा से आज तक जो कुछ मैं कर पाया हूं या कर रहा हूं, आप लोगों ने उसे पसंद किया. मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूं. Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peoplemoon.com. Probably one of the most difficult conversations you have about someone is when the person is no longer with us. But then, as they always say, memories never fade. Today, director Umesh Chopra is going to take us through some of the best memories and one of the best cinematic journeys he shared with Rishi Kapoor sir. Welcome, Umesh. Hello, how are you? I'm good. How are you, sir? I'm fine. So, what started with All Is Well to 102 Not Out? What was your first meeting with Rishi sir? Actually, my first meeting was before All Is Well. One of my play, Tame Mane Gamocho, I approached him for the role, and he refused me because he said, in any condition, I won't be looking Colonel, because Colonel is always a very strict personality, and my image is very romantic. So I think this character is not for me. So I tried and explained him that it's not only about how strict he is. He is very romantic at heart, but somehow that thing didn't materialize. But when I was thinking of like All Is Well, then I spoke to Abhishek. Then Abhishek said, "Yeah, this is a good character, and if he's playing my father, nothing like it." I said, "Let me approach him one more time." Then I called him, and he was very positive this time because Oh My God was already released. So he knew about my craft also, that if he's approaching, then it won't be something very, कि मतलब अच्छा ही होगा तो ही he must be approaching me. So I met him at his house, and we sat for a long time. I narrated him in like 20-25 minutes, and he agreed. And All Is Well was a great process. People said that he avoids shooting in the night, and I heard a lot of gags about night shooting, that he like refuses completely. But fortunately, I shot 16 nights with him in a row, so he never complained or something like that. So I said, people always used to tell me about you that you'll never shoot in night. He says, no, it's all. I mean, yes, it was like that, but the character is such that I would love to, devote time. So I really had a great time with him. He was a great guy, great friend, great brother, whatever you can say. Rishi was very excited for his second innings, sir. Like he always used to say कि मैं अपना स्वेटर उतार कर अब finally वो रोल कर सकता हूँ जो मुझे पहले कोई देता नहीं था. And 102 was one such film which surprises everyone, because normally for actors in his age, such strong parts, I would say the central parts are not written, and he was very excited and everybody loved him. Yeah. How did that happen for you? Because that Mr. Bachchan I could sense, but Rishi ji as the son was something everyone was surprised. In fact, I narrated Bachchan Saab before Chintu ji, and he said, who's there in your mind for the son's character? I said, Chintu ji. He said, yeah, good choice, but I don't think he'll
say yes to you. I said, why you are saying this? He said, in his biography, he was not happy with me regarding some comments which he did. And I said, okay, anyway, let me try. And then when I went to Chintuji and I narrated him the one line, and he was quite excited. He said, I don't mind playing son's character, but Bachchan Saab will say no because, I have said something not in a... So, yeah, but Chintuji said, I said, no, I spoke to Bachchan Saab and he is saying that I would love to work. And then they both agreed. And for me, it's a great treat because after 27 years, they were coming together in that film. So, yeah, it was a great film, great experience for me that to work with both the stalwarts like this, and I had a great time during the shooting also because I mean you keep on learning. Every shot you learn something out of them. So the way they used to manage each other, and ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग 27 साल के बाद काम कर रहे हैं. ऐसा ही लग रहा था कि कल काम किया और दूसरे दिन शूटिंग पे आया. He was very happy to be part of that film because he said that in Kabhi Kabhi they used to play father and son, but in that film we used to always say कि मैं तो स्वेटर पहन के बस गाने ही गाता था. तो ये अच्छा कैरेक्टर भी है to play Bachchan Saab's son's character, and very meaty character it was, yeah. And he always जब भी कोई भी सीन होता था वो इतने एक्साइटेड हो जाते थे करने के लिए. मुझे याद है that I was shooting in Seven Hills Hospital. I created an airport over there, and it was again a night shooting. So I thought that he'll be very angry because it was a very dramatic sequence. But he was so charged during that shooting that he used to handle even junior artists also while shooting. So his dedication was something else. He said, no, I'll manage everything. You don't worry. You just concentrate on performances, and whatever you want from me, you just tell me. So he was very excited to perform that sequence where his son used to come from abroad, and his son comes from the abroad and received him. Yeah. So he was very excited, and he was really managing entire 150 junior artists, and with his performance, he was handling all this. Yeah. So I still can't believe that he's no more. He's still with me. Commissioner, you have acted yourself. You write, you direct. But when a person acts and then you see Rishi Saab acting, as you have said, there were so many stories there, but the pleasure must have been immense. I can't compare because of the filmography he has. It is impossible to even sum it in one interview. But you, I'm asking as an actor's perspective, what was that one charming point of Rishi Ji that I think everyone loved? He was spontaneous. He never used to believe in method acting. Though I asked him for a workshop before the films started, and he said, "मैं workshop कभी करता ही नहीं हूँ, मैंने किया ही नहीं है. मुझे तो shoot पे हमेशा वहीं पे script देते और मैं कर लेता हूँ and all that stuff." I said, "No, but even Bachchan Saab feels that we should meet twice, thrice, and we should go through our lines." And he said, "Yeah, okay, if Bachchan Saab is saying, then why not?" Then he came to Bachchan Saab's house also, and we had a workshop. So उनको पहले वो process में मजा नहीं आ रहा था. तो me and my writer Sombhi Joshi used to read his lines, and Bachchan Saab used to read his part. And after 4 or 5 pages, he said, "No, let me read it." And then he took the script, and then the give and take started between Bachchan Saab and him. And after a few pages, we had a break, and we had some snacks and all that. And he said, "It's a good process. I think every film, हर फिल्म में ऐसा एक बार होना चाहिए, ऐसा सेशन जिससे बहुत मजा आता है." So at this age also, he was so adaptive. Otherwise people are very adamant or rigid about their way of working. But he was very adaptive. He always used to feel that no, if this is the way one has to work, then I don't mind doing it. So वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस था हमारा कि जो कभी वो ना नहीं बोलते थे. He was enjoying like anything.
सो या वो एक बहुत अच्छा था। Is it true ऋषि साहब कहते थे मैं अपने कैरेक्टर घर लेके नहीं जाता, मैं हाँ उन्हें हाँ छोड़ जाता हूँ सेट पे? हाँ, पर ऐसा होता नहीं था, वो कहते थे ऐसा। मतलब आफ्टर एवरी शूटिंग, मतलब वो उनकी, हम लोग उसके कार में ही बैठते थे या उनकी वैन में ही बैठते थे। वी यूज्ड टू मेक आवर ग्लासेस एंड वी यूज्ड टू हैव ग्रेट टाइम। बट एट द सेम टाइम उनको, वो बोलते थे ऐसा, पर ऐसा होता नहीं था। मतलब अगर बीच में 3 या 4 दिन का गैप आता है शूटिंग में, और कभी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं फोन पे या मैं उनको मिलने जाता था, then he'll definitely remembers the moments which he shared, which he created during the shooting. You see यार, वो शॉट बहुत अच्छा था, उसमें बहुत मजा आया था करने में। So ऐसा था नहीं, जो कहते थे, पर वो हमेशा, अगर कोई अच्छी चीज उनके पास आती थी तो हमेशा वो जीते थे, वो मोमेंट्स को जीते थे। उनके बारे में एक बात बहुत जगह मैंने पढ़ी, मुझे पता नहीं तो आप ही से पूछ रही हूँ कि ऋषि साहब को स्क्रैबल खेलने का सेट पे बहुत शौक था। मतलब उनके सामने सब हारते ही थे अगर वो कोई भी बोर्ड गेम लेकर आते थे सेट पे। कभी ऐसा 102 के सेट पे हुआ कि वो हराते गए लोगों को गेम्स में? हमने 102 में, वो हमेशा उनका ये रहता था कि उनको, जितने भी हमारे एडीज होते हैं, उनके क्लास लेने की बहुत मजा आती है। तो वो हमेशा, अगर पेन यहाँ रखनी चाहिए थी तो वो यहाँ रख देंगे बिफोर द शॉट, और मुझे आके बता भी देते थे कि देखो मैंने पेन यहाँ से पॉकेट में यहाँ रख दी है, अब देखो कितने एडीज है तुम्हारे जो मुझे याद कराते हैं ऐसा। तो फिर मैं मेरे कैमरामैन को भी बोलता था कि रोल मत करना शूटिंग, ऐसे मैं एक्शन बोलूंगा एंड यू स्टार्ट। तो आफ्टर द शॉट गेट्स ओवर, वी यूज्ड टू कॉल कम ऑन, सब लोग यहाँ आ जाओ, व्हाट इज दिस, मैंने यहाँ रखा था, आपने यहाँ चेक नहीं किया। सो उन्हें वो बहुत मजा आता था कि सबके क्लास लेते थे। पहले पहले ऐसा भी होता था, मैंने भी बहुत सुना था कि वो डायरेक्टर की भी बहुत क्लास लेते हैं। तो मैंने पूछा कि अच्छा क्या क्लास लेंगे, तो हमेशा वो चेक करते हैं कि डायरेक्टर को उसका काम कितना आता है कि नहीं। पर बहुत अच्छे से, ही नेवर यूज्ड टू लाइक, वो किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहते, पर उनको जानना होता है कि डायरेक्टर का कन्विक्शन कैसा है। ही ऑलवेज वांटेड टू नो दैट व्हाट इज हिज कन्विक्शन। सो अगर मैं उनको बोलूंगा कि चिंटू जी आप दरवाजे से आएंगे और यहाँ पे आपके सोफे पे बैठूंगा, फिर से भाई मैं ऊपर से भी तो आ सकता हूँ, सीढ़ी है, सीढ़ी पे से आ जाऊंगा। सो यू हैव टू हैव योर आंसर्स करेक्ट। अगर आपके पास आपके जवाब जवाब करेक्ट होते हैं, देन ही विल रियलाइज कि नो नो नो, ये होमवर्क करके आया, ही नोज हिज जॉब। अगर उसको अपना जॉब पता होता है, देन ही विल नेवर लाइक यू नो इंटरफियर और आस्क क्वेश्चंस। सर आई रेड समवेयर कि जब आप ऋषि साहब को न्यूयॉर्क देखने गए थे तब आप उनके पास एक स्क्रिप्ट भी लेकर गए थे, इज इट ट्रू? या मेरे पास एक अच्छा आइडिया था जो मैंने बच्चन साहब के साथ भी शेयर किया था, और मुझे इच्छा थी कि चिंटू जी करे। तो चिंटू जी बोल रहे थे कि बस मैं अभी इंडिया आ जाता हूँ, मेरा ट्रीटमेंट वैसे सब अच्छा हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लोग इटालियन रेस्टोरेंट में भी गए थे खाना खाने, मैं, नीतू जी, चिंटू जी, सौम्या जोशी और अभिजात जोशी, हम सब गए थे। और ही रियली लाइक द आइडिया और बोला कि अभी आगे हम सुनते हैं, तब मैं इंडिया आता हूँ। तब फिर इंडिया आके वो थोड़े बिजी थे। फिर ये पेंडेमिक शुरू हो गया, देन आई स्पोक टू हिम, आई सेड चलो हम लोग एक बार और मिलते हैं। ही सेड यार जल्दी मिलना है यार, ये जल्दी खत्म हो जाए पेंडेमिक, मुझे मिलना है और जल्दी काम शुरू करते हैं। तो बस फिर नहीं हो पाया, हम मिलना ही नहीं हो पाया, फोन पे बात होती रही है। सर एक ग्रज शायद आपकी तरह और बहुत सारे फैंस और डायरेक्टर्स और आर्टिस्ट को भी रहा कि पैंडेमिक के कारण बहुत ऋषि साहब को जिस सम्मान के साथ हम विदा कर सकते थे हम शायद नहीं कर पाए। दैट वाज अ ह्यूज थिंग एंड मैंने पढ़ा था कि आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज का हिस्सा होने में। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क, बट आई जस्ट जेन्युइनली फील शायद हम लोग उनको जिस तरीके से सेंड ऑफ दे सकते थे हम में से कोई नहीं दे पाया। वो पता नहीं, वो वक्त ही ऐसा था, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ कांटेक्ट करे, किसको कांटेक्ट करे। उस वक्त भी शायद 20 या 50 उतने लोगों का ही, आई थिंक 20 लोग ही अलाउड थे उस वक्त। और एक तो पहले वो हॉस्पिटल गए तो ही थोड़ा वो लग रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वापस नहीं आएंगे, ऐसे ही था कि हाँ ठीक है, उनका रूटीन नॉर्मल होता है वैसे ही है,
एंड सर हमेशा फाइट करके वापस आए हैं इन दैट हाँ पर्टिकुलर हाँ, आर्क। he was बहुत मतलब ऑलवेज बहुत जिंदा दिल थे वो। उनको लगता था कि हो जाएगा, ये पता नहीं कब कैसे हो गया। अभी तक अगर मानने में नहीं आता तो उस वक्त तो कैसे मानने में आएगा। तो उनको देख ही नहीं पा रहे थे, मतलब उनका जब वो जो बोलते हैं वैन जब स्मशान के अंदर गया तो देख ही नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था क्या हो रहा है, मतलब इट वाज लाइक कि हमारे अंदर से कुछ जा रहा है। बहुत अलग फीलिंग थी वो, अभी भी वो नहीं समझ में आ रहा। या इट्स डिफिकल्ट। सर जब हम इतना विजनरी आर्टिस्ट हमारे बीच में लूज करते हैं, वो वॉइड ऑफ कोर्स, as आपने पहले भी कहा था, वो भरना इम्पॉसिबल है। मतलब आई डोंट नो, वो शायद 2 दिन सबसे टफ थे, पहले इरफान साहब और इससे पहले कि हम कुछ अंडरस्टैंड कर पाते भी हर ऋषि साहब। आई थिंक हमें से किसी को प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिला कि we just lost a little too much, like कोई भी हम से रेडी नहीं। या और बहुत ही सहज, जिसको बोलते हैं सटल एक्टर। पता नहीं क्या होगा, क्या लिखा होगा उनकी, समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त भी, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। अभी भी इरफान जी के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में सब कुछ आ रहा है तो ऐसा लगता है कि यार ये इतने सब बढ़िया एक्टर्स है। ये पूरा साल ऐसा रहा है कि हर तीसरे दिन चौथे दिन कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आती है। ये 1 महीने का गैप जाता है, वापस उसमें ऐसी न्यूज आती है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। भगवान करे ये वक्त जल्दी निकल जाए, सब वापस नॉर्मल हो जाए। सर एक आपसे मुझे जानना था कि आपका रिलेशनशिप में जितना समझ पा रही हूँ उनके साथ, वो एक बहुत ही एक इट वाज मोर देन अ डायरेक्टर, इट वाज लाइक अ ब्रदर, आई डोंट नो, इट वाज लाइक अ सिबलिंग। आपका जो उनके साथ प्यार था, जितना मैं समझ पा रही हूँ, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में सर ने कहा था कि सब कुछ मेरी लाइफ का सामने ओपन है, मतलब ना कोई झूठ है ना कोई सच है, ये है मैंने पहले लिख दिया, आप देख लो। पर उनकी उन सारी यादों में आप अपनी कोई एक याद जोड़ना चाहेंगे जो शायद उनके बहुत सारे फैंस को ना भी पता हो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बता ही दिया उस ऑटोबायोग्राफी में, शायद ही कुछ छोड़ा था सर ने। बहुत सारी है ऐसी, एक याद हो तो बताओ। बहुत सारी यादें ऐसी, हमने इतने सारे मोमेंट्स गुजारे हैं, फिर भी हैप्पी नोट पे मुझे लगता है कि कोई एक याद मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग ऑल इज वेल शूटिंग कर रहे थे। शिमला से आगे मशोबरा करके जगह थी, वहां उनकी एक बार तबीयत थोड़ी, उनको साइटिका का इश्यू था। तो रातों रात उन्होंने होटल से चेकआउट करके वो अपने आप ही चंडीगढ़ चले गए थे हॉस्पिटल में। और हमें चंडीगढ़ जाते जाते रास्ते में उन्होंने मैसेज कर दिया था कि कल की शूटिंग नहीं हो पाएगी और मैं तो चंडीगढ़ निकल गया हूँ। और वो उन्होंने सुबह 4 बजे मैसेज किया था। तो जब मैं 5:30-6 बजे शूटिंग के लिए उठा तब मैंने देखा, तो मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैंने सीधा चिंटू जी को फोन लगाया, तब तक वो हॉस्पिटल के ऑलमोस्ट पहुंचने आए थे। ही सेड मैं एडमिट होने जा रहा हूँ। आई सेड आप ऐसे कैसे निकल गए, मुझे बोला होता, मैं साथ में आया होता। क्योंकि सी ब्रदर फ्रेंड इज, मतलब फादरली फिगर भी उतने ही थे मेरे, तो मुझे लगता था कि ऐसे कैसे कोई निकल जाता है। आई सेड आप जाइए, मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके। तो मैंने फटाफट नीचे, मैं तो नहाया भी नहीं था, मैंने मेरा जो हमारे जो डीओपी थे समीर आर्या, वो भी उतने ही करीब थे उनके, हम दोनों गाड़ी में बैठे और चंडीगढ़ जाने के लिए निकल गए। तो शूटिंग तो ऐसे भी नहीं होना था, तो मैंने प्रोड्यूसर को मैसेज कर दिया कि आज शूटिंग नहीं होगी। तो हम लोग भी चंडीगढ़ पहुंच गए। तो उस मशोबरा से चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 3.5-4-5 घंटे हो गए। तब तक उनकी ट्रीटमेंट भी काफी हो चुकी थी और काफी वो बेटर फील कर रहे। तो मैंने बोला अब क्या करें, थोड़ा करेंगे क्या, चंडीगढ़ आए हैं। उन्होंने कहा तो पाल के ढाबे में खाना खा के ही जाते हैं। उनको खाने का इतना शौक था। तो मैंने बोला ये तबीयत ऐसी है, आप हॉस्पिटल से निकल रहे हो, अभी भी आपको ढाबे पे खाना खाना है। तो ही वाज ऑलवेज, मतलब वो फूडी भी उतने थे कि उनको अगर पता चला कि यहाँ अगर अच्छा कोई खाना मिलता है तो वी थ्री हैड अ ग्रेट लंच टुगेदर एंड वापस आ गए शूटिंग।
सर ऋषि साहब ने, मुझे आज भी याद है, संजू देखने के बाद कहा था कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मुझे रणवीर के साथ एक स्क्रिप्ट ऑफर करे, एक शायद मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको आइडिया होगा कि नहीं, बट क्या आप अवेयर थे कि वो बहुत keen थे रणवीर के साथ काम करने के लिए, बेशर्म के बाद स्पेशली? जी, वो मुझे हम लोग जब हमारा जब लंच टाइम होता है या हम लोग जब फ्री टाइम में बैठे रहते हैं तो वो एकदम मतलब वो जानते थे कि उनका जो बेटा है वो बहुत ही बढ़िया एक्टर है, पर वो कभी बताते नहीं थे ऐसे पब्लिक में, पर उनकी बातों से पता चलता है कि ही रियली यूज्ड टू लाइक लव हिम लाइक, वो बहुत ही मतलब चाहते थे कि बहुत कोई अच्छा कैरेक्टर मिले, दोनों अच्छा परफॉर्म करे, दोनों साथ में परफॉर्म करे। सर आई नो बहुत डिफिकल्ट है, बट एक लास्ट चीज, हमारी आने वाली जनरेशन और जो अभी जनरेशन है एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, क्रिएटर्स की, आप क्या चाहेंगे कि वो सब ऋषि जी की जिंदगी के एक पन्ने का एक लेसन जरूर अपने साथ रखें? कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है हर कोई उनसे सीख के अपने साथ रख सकता है हमेशा के लिए इस क्रिएटिव फील्ड? वो एक बात वो ऐसी थी कि वो लोगों ने जो मुझे वो कहते थे, खुद कहते थे, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि वो खुद ही कहते थे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, बहुत बुरा काम भी किया है। So he used to accept that and he used to always say that कि पर फिर भी हमारी जो निष्ठा थी, हमारी जो ऑनेस्टी थी towards प्रोफेशन, towards वर्क, वो 100% रहती थी हमेशा। तो कभी कभी सबकी विद द एज सेंसिबिलिटी भी चेंज होती है, तो वो बोलते थे कि हम काफी ग्रो किए हैं काम करते करते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि यूथ को ये जाननी चाहिए कि हमेशा जो भी आप कर रहे हो काम, उसमें आप अपना 100% डालो और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पूरा दो। तो वो उनसे बहुत अच्छी एक बात मैं भी सीखा था कि वो जो भी करते थे इतना दिल से करते थे। मतलब अगर मुझे याद है एक 102 नॉट आउट का डबिंग चल रहा था, 102 नॉट आउट, तो उनका पहले एक सिस्टम रहता था जो हर एक काफी एक्टर का रहता है कि पहले पूरी एक रील देख लेते हैं और फिर डबिंग शुरू करते हैं। तो उन्होंने एक पूरा रील देखा और इतने चौक हो गए थे, इतना इमोशनल सीक्वेंस था। तो बच्चन साहब के परफॉर्मेंस से वो इतने चौक हो गए थे कि उन्होंने कहा कि उमेश आज मैं डबिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना अंदर से हिल गया हूँ। तो कभी कभी मैं सोचता था कि आप तो एक्टर है, एज एन एक्टर तो आपने ये जब सीन हुआ था तब कितनी बार रिटेक हुए होंगे, कितनी बार काम हुआ होगा, उसके बाद एडिट होता है। अभी भी आप सीन देखकर इतने अगर भावुक होते हैं तो अंदर से कहीं वो इंसान इतना जिंदा है, उनके अंदर इतना जिंदा था कि ही सर कि मैं आज शूटिंग नहीं कर पाऊंगा, बच्चन साहब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और मुझे बोला कि देखो बच्चन साहब ऐसे ही बच्चन साहब नहीं होते हैं, ये देखो मैं समझ रहा था कि पूरी फिल्म में मेरा रोल इतना अच्छा है कि मुझे मजा आ रहा है, पर ये देखो ये सीन में ये आदमी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। वो सो हैप्पी। वो घर गए और उन्होंने बच्चन साहब को बहुत बड़ा बुके भी भेजा उन्होंने, तो इतना बड़ा जेस्चर भी उन्होंने किया। तो बच्चन साहब ने मुझे फोन किया रात को, यार ऐसा मैंने कैसा सीन परफॉर्म किया, ये वो है। तो तो दूसरी एक बात ये भी होती है कि एक इतना बढ़िया कलाकार एक दूसरे एक्टर अच्छा काम कर तो उसको अप्रिशिएट भी करता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है जो यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए। साहब के लिए एक याद जो मेरी थी वो यही थी कि ट्विटर पे बहुत इंटरैक्ट किया उनके साथ। वो जैसे थे वो बस बोल देते थे और वो कहते थे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोल दिया, अब जिसको जो समझना है समझे समझ ले। आप मानते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ में एंड मिनट तक जब तक आप उनसे बात करते रहे बिल्कुल वैसे ही रहे? बिल्कुल ही वैसे थे, बिल्कुल ही वैसे थे। इनफैक्ट मैंने जब से उनके साथ काम किया उसके पहले मैंने बहुत ऐसा सुना था कि ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत चिढ़ जाते हैं, मीडिया के साथ का बिहेवियर पता नहीं, या मैं इतना खुशकिस्मत हूँ, आई वाज सो लकी कि मेरे साथ मैंने ऐसा कुछ उनका वो साइड ही नहीं देखा।
So we had a great time together. And sir, lastly, आपने ऋषि जी के साथ शायद मेरी अब तक की उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म्स करी हैं. अगर आपको मौका मिलता है रणबीर और नीतू जी के साथ काम करेंगे, क्योंकि नीतू जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि ऋषि साहब चाहते थे मैं हमेशा काम करूं. आप आई थिंक दैट इज द बेस्ट मेमोरी आई कैन कीप कि मुझे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो उन आई डोंट नो. डेफिनेटली मेरी तो हमेशा इच्छा रहेगी. इनफैक्ट बॉल इज इन देयर कोर्ट. आई मीन मैं अगर कोई स्क्रिप्ट लेकर जाऊं और उनको ना पसंद आए तो बात अलग है, पर डेफिनेटली मैं तो 100% चाहूंगा कि उनके साथ काम करूं, क्योंकि बहुत ही, मैं तो नस्ल कहता हूं कि बहुत बढ़िया नस्ल के लोग हैं ये. तो बहुत रेयर क्वालिटीज है पूरी फैमिली में टूवर्ड्स कला के प्रति, आर्ट के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं. ऑफ कोर्स उनके साथ काम करने में मजा ही आएगा. डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क फॉर श्योर. तो क्लोज करने से पहले आप मुझे ऋषि जी का अपना फेवरेट सॉन्ग बताएं. हम उसके साथ इस इंटरव्यू को एक अच्छी स्माइल के साथ क्लोज करेंगे, बिकॉज आई थिंक वो जहां भी होंगे मैं उनको डांसिंग स्टार की तरह इमेजिन कर सकती हूँ, एक अच्छे से कार्डिगन के साथ कहीं ऊपर हंसते हुए. मुझे आप उनके उनका फेवरेट सॉन्ग बताएं. मुझे उनका दूसरा आदमी का गाना बहुत अच्छा लगता था. उनका और राखी जी का गाना था. चल कहीं दूर निकल जाए. चल कहीं दूर निकल जाए. फिल्म का नाम शायद दूसरा आदमी था, पर मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता था. I think बहुत ही मेरे लिए वो हमेशा, जैसे आपने कहा चल कहीं दूर, for me he'll always be दर्द दिल. I can never take anyone yeah, of yeah. that song. You, all his songs, I mean, all his songs were very good. I mean, कल कोई एक टीवी शो पे जयाप्रदा जी थी, तो उन्होंने सरगम के गाने के बारे में बात की. So you always feel that वो गाने तो वो ऐसे, मतलब बच्चन साहब खुद कहते थे कि चिंटू जी जैसा कोई लिप सिंग नहीं कर सकता था. The way he used to like perform all the songs, I mean, मजा आ जाता. I think we all will remember him on a very good note. Yes. And लोग कहते हैं कि of course like anyone हम भी चाहते थे कि वो कला और वो साल और रहे, लेकिन 50 साल से ज्यादा उन्होंने काम करा है. I don't think आज के टाइम में आप उतना किसी भी आर्टिस्ट से आप उतना आउटपुट ले सकते हैं अगर मैं कहूँ तो. बट थैंक यू उमेश, आपने इतना दिल से कॉन्वर्सेशन करी. मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मैं ऋषि जी के लिए हम कोई ट्रिब्यूट कर सकते थे. Thank you.